Hello students, today I welcome the students of Standard 8 in this online class, and this class I am preparing the video on the demand of some students of Standard 8, those who have told me that this chapter should be studied properly. And today this chapter 6 is very important, reproduction in animals. There may be different books have different chapters, but the topic remains always the same. When you are reading the book, any book, reproduction in animals, from any book you are reading, but the basic information that you will get, that will be same. So don't worry. If you have another book also, if you have the book of NCERT, then it is most welcome, because this is the NCERT book and I am teaching with the book of NCERT. तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, यू हैव टू रीड दैट लिविंग थिंग्स की बहुत सारी कैरेक्टर्स आपने पढ़ी होगी। जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसके कई कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे आप जानते हैं डाइजेशन, क्या जान रहे हैं आप? डाइजेशन। तो ये डाइजेशन जो है, जैसे ही आप देखेंगे डाइजेशन को, तो आप डाइजेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो these are different type of metabolic activities which is happening inside the living organisms, like digestion, circulation, respiration. In addition to these activities, these are called metabolic activities. In addition to these metabolic activities, the most important metabolic activities that we are going to read today, this is reproduction. And it is the very important characteristic of a living organism. रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत ही important characteristic है living organisms का. And reproduction always occurs both in plants, reproduction plants में भी होता है और reproduction animals में भी होता है. तो how can you define the process of reproduction? तो very simple definition है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो it will be very well for you. In short I can write here, if you want, then I write here. You can also write the process of producing. You have to prepare the notes. Living beings of the same kind, of the same kind, by the involvement of parent is called reproduction. You can also write it in your notebook. Okay, so this is the process of reproduction and this is the definition of reproduction. You must read it thoroughly, and if you read the book, then you shall understand that I have told you that there are several metabolic activities happening inside the living organisms, and these are the important characteristics of living organism. But reproduction is one of the most important most important activities, most important characteristics of living organism. But why का रीजन का आंसर ये है, रिप्रोडक्शन वाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन. अगर ये दुनिया अभी देख रहे हो ना, ये दुनिया जो देख रहे हो, दिस इज ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता ही नहीं. और ये अर्थ पे जो जितने लोग हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो एक्टिव है. और रिप्रोडक्शन के कारण ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स. जैसे अगर कैट है तो कैट की अपनी एक रिप्रोडक्शन होती है. कैट के बेबी को किटन कहते हैं. किटन बिकम्स एडल्ट एंड व्हेन बिकम द कैट, अगेन द कैट रिप्रोड्यूसेज. इन द सेम फैशन डॉग्स के साथ या फिर किसी भी एनिमल्स के साथ अगर हम देखें तो भी होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ होता है, तो एनिमल्स के भी होते हैं. तो फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग आएंगे कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन,
मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं, द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स, एज यू नो, चिक्स, चिक्स हेन्स के बेबी को क्या कहते हो? चिक्स कहते हैं। कैटरपिलर्स, बटरफ्लाई के बेबी को अगर हम लोग कहें तो लार्वा कहते हैं, बटरफ्लाई लार्वा। किटेंस कहते हैं कैट के बेबीज को, कैट के बेबीज को किटेंस कहते हैं। पपीज, डॉग के बेबीज को पपीज कहते हैं। तो ये कैसे इनका बॉन्ड हुआ? हाउ आर दे बॉन्ड? यू हैव टू फाइंड आउट कि कैसे उनका बॉन्ड होता है। तो इसको बॉन्ड करने के लिए हम लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट इज दिस। तो पहले तो आप उसके बेबी के नाम आप लिखो खुद से। कैट के बेबीज क्या है? तो कैट की बेबीज किटेन है, डॉग की बेबीज पपीज है, बटरफ्लाई लार्वा है, काव में काफ है, हेन का चिक दिया हुआ है, फ्रॉग में टैडपॉल है। लार्वा के बेबी को, बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर भी कहा जाता है, इसलिए आप कैटरपिलर भी कह सकते हो। लार्वा तो लार्वा है, लार्वा का नाम होता है। तो बटरफ्लाई के केस में लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, जबकि फ्रॉग के लार्वा को टैडपॉल कहते हैं। तो लार्वा इज द यंग वन, बट द नेम इज नोन एज बाय कैटरपिलर। ओके। और जो रिप्रोडक्शन है ये दो टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें जैसा नाम देख रहे हो, ए मीन्स होता है नॉट, जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, सेक्सुअल पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल। आपके बुक में जितनी बातें हैं बस अभी उतनी ही पढ़ाई करेंगे हम लोग। बहुत सारी बातें हैं पढ़ने को, बट स्लोली एंड स्लोली यू विल लर्न मेनी थिंग्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है? ट्राई टू रिकॉल द रिप्रोडक्शन दैट यू हैव स्टडीड इन सेवन में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो व्हाट कि हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअली मेल एंड फीमेल पार्ट्स डिफरेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में। कैन यू नेम दिस पार्ट्स? तो प्लांट्स के अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे, प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव, कि प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगर आपने पढ़ लिया होगा तो प्लांट्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो दो होते हैं, उसमें भी मेल और फीमेल होते हैं। आप अगर पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। देखो, और मेल को हम लोग इस तरह से डिनोट किया जाता है और फीमेल को इस तरह से डिनोट किया जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमेन कहते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पेल कहते हैं। इवन की पिस्टिल भी कहा जा सकता है, कार्पेल या पिस्टिल। तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के। Now we have to read in this chapter reproduction in animals। तो यहाँ भी स्टेमन में जो है मेल गैमिट बनेगा, जो मेल गैमिट बनाएंगे और फीमेल गैमिट बनेगा। स्टेमन में मेल गैमिट बनता है और कार्पेल में फीमेल गैमिट मिलता है, बनता है। देन दे फ्यूजन होगी और फर्टिलाइजेशन होगी। तो लाइक प्लांट्स ऑल्सो इन एनिमल्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस दी गैमिट्स। अब एनिमल्स में कैसे होते हैं? तो एनिमल्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और वहां भी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मीन्स की गैमिट का फॉर्मेशन ही जो है ना रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है। तो गैमिट की रिप्रोडक्शन की जो फॉर्मेशन होती है वो मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के द्वारा मेल गैमिट का प्रोडक्शन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के द्वारा फीमेल गैमिट का रिप्रोडक्शन होता है। और लेटर ऑन क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है। फ्यूजन से क्या बनेगा? जायगोट बनेगा और जायगोट से फिर एक एम्ब्रियो बनेगा। तो दैट फ्यूज टू, इन स्टैंडर्ड 8 के बच्चे हैं, आपको तो बहुत ही क्यूरियोसिटी भी होती है आप लोगों की कि आप इस चीज को जानें और आपको जानना भी चाहिए। यू आर इन द एडोलेसेंट स्टेज, यू मस्ट नो द थिंग्स हाउ रिप्रोडक्शन takes place and the things that has been given in your syllabus, that should be studied very well।
सो टू फॉर्म ए जाइगोट। तो आप समझ लो कि गैमीट का फॉर्मेशन होना इट इज द फर्स्ट स्टेज फॉर द रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट जैसे ही बन रहा हो वो फर्स्ट स्टेज है रिप्रोडक्शन का। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस लाइन को आप याद रखेंगे बच्चे। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। द टाइप ऑफ, sorry, this type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete। यहाँ पर अगर आप द कर दोगे तो इट विल बी ए गुड डेफिनेशन फॉर यू। लेटर ऑन वी शैल स्टडी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। इन ह्यूमंस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ह्यूमंस में आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आप जो बुक में देख रहे हैं, दिस इज द फिगर ऑफ ए स्पर्म which has three parts. One is the head, the middle portion is called middle piece, then the third portion is called the tail. So male reproductive organs include a pair of testes, जिसमें एक टेस्टीज होते हैं, दो टेस्टीज होते हैं, एक पेयर ऑफ टेस्टीज है, और टू स्पर्म डक्ट्स, टू स्पर्म डक्ट्स। डक्ट्स किसको कहते हैं, डक्ट्स कहते हैं जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी को डक्ट्स कहा जाता है। एंड वन पेनिस। देयर आर थ्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द टेस्टीज प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स। स्पर्म्स जो है ये मेल गैमीट है। मेल गैमीट का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस अगर हम लोग पढ़ रहे हो तो वहां पर मेल गैमीट का नाम क्या पड़ता है, स्पर्म्स होता है। And millions of sperms, not one sperm is produced, but millions of sperms are produced by the testes. Now you can understand these sperm you are reading only one sperm ना, but sperms की जब production होती है तो millions of sperms की production होती है, और they are very small in size, जिसमें कि तीन पार्ट होते हैं, हेड होते हैं, हर एक के मिडिल पीस होंगे और टेल होंगी। अब आप समझ सकते हो कि स्पर्म एक मेल गैमीट है। स्पर्म क्या है बच्चा, मेल गैमीट। स्पर्म को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्म को मेल गैमीट कहेंगे। स्पर्म के कितने पार्ट्स हो गए, हेड हो गए, और क्या हो गया, टेल हो गया, मिडिल पीस हुआ, और ये टेल हो गया। यू कैन अंडरस्टैंड देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द स्पर्म। तो तीन पार्ट्स, तीन बातें याद रखनी है आपको। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स क्या क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ए पेयर ऑफ टेस्टीज रखेंगे, टू स्पर्म डक्ट्स एंड ए पेनिस। ओके, और स्पर्म क्या है, तो स्पर्म एक मेल गैमीट है। कौन प्रोड्यूस करता है, तो टेस्टीज के द्वारा प्रोड्यूस होता है। स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टीज। Testes produce sperms, okay, and sperms are always produced in millions of number, not only single sperm is produced, and this sperm is called male gamete. A sperm has three parts, head, middle piece and tail. Now you can see in the diagram also, diagram कहीं कोई साई होने की बात नहीं है, this is the reproductive part and you have to study well. So don't be very shy in the study of the male reproductive organ or female reproductive organ. After all, you have to become a doctor, or if you have to become some you have to make a career in biology, you can understand it very well. All the things that human की body जो है इसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो you have to be familiar with all the organs. तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें आप देख रहे हो पेनिस, स्पर्म, डक्ट। मैंने कहा डक्ट, डक्ट जहां भी लिखा होगा ना बच्चों, डक्ट का मतलब होता है जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग डक्ट्स कहते हैं, तो ये है। और दूसरा आप देख रहे हो पेयर ऑफ टेस्टीज, ये जो टेस्टीज देख रहे हैं इसी के अंदर से आपका स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है, व्हाट आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ए पेयर ऑफ ओवरीज। अब फीमेल के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो ये ओवरीज देख रहे हैं, दो, यानी वन पेयर ऑफ ओवरीज है। ओविडक्ट, ओविडक्ट कहते हैं फैलोपियन ट्यूब को। ये ट्यूब जो आप देख रहे हो यहाँ भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। इसी ओविडक्ट को क्या कहते हैं, फैलोपियन
फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इसी ओविडक्ट को कहा जाता है। और यूटरस, यूटरस के अंदर ये जो कंप्लीट बीच का जो एरिया देख रहे हो जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होगा, यहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो ये यूटरस का एरिया है। तो ओवरीज, ovaries, oviduct और uterus, these are three important parts. There are so many reproductive parts. जब आप आगे पढ़ेंगे ना बहुत सारे reproductive parts हैं, but the main reproductive parts that you have to study as per the book of NCERT in standard 8, you will read all these three parts: ovary, oviduct and uterus. If you are reading the books of another publication, you can write in the comment box and I will discuss that book also. If you have any more information in your book, that will be discussed by me. Okay. एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवा। फीमेल गैमेट, यहाँ पर मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म कहते थे, लेकिन फीमेल गैमेट को ओवा कहते हैं। ओवा, ओवा क्या है ना, एक प्लूरल वर्ड है। ओवा इज द प्लूरल वर्ड, बट ओवम अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ड हो जाता है। जब एक ओवम की बात करते हैं तो ओवम बोलते हैं, और जब प्लूरल बात बोलते हैं तो ओवा भी बोलते हैं। तो फीमेल गैमिट है तो दोनों गैमिट ही, दोनों फीमेल गैमिट है, दोनों क्या है, दोनों फीमेल गैमिट हैं। फीमेल गैमिट्स कॉल्ड ओवा। और मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। हर एक मंथ में क्या होता है, आप जैसे यहाँ जो देख रहे थे, ओविडक्ट में एक ओवरीज के द्वारा एक एग रिलीज किया जाता है। यहाँ पर जो ओवरीज है इसके द्वारा एक एग जो है ये ओविडक्ट में एकदम देना ही देना है। एक ये ओविडक्ट में ये एग को भेजा जाता है ओवरी के द्वारा। ठीक है, कहाँ भेजा गया, ओविडक्ट में। नाउ यू सी, तो एवरी मंथ जो ओविडक्ट से में जो एक एग जाता है, उसी एग को फिर यूटिलाइज किया जाता है यूटेरस में। जो ब्लड की लाइनिंग बन जाती है यूटेरस में। ये यहाँ पे जो रेड कलर से अगर हम उसको दिखाएंगे तो यू विल बी मोर familiar with the things that you will understand. This will be and it helps in the growth of the baby. ये जो ब्लड है, ये ब्लड की लाइनिंग जो होती है, ये लाइनिंग अगर फ्यूजन नहीं होता है, अगर इसको स्पर्म्स नहीं मिलते हैं, अगर इसे स्पर्म्स नहीं मिलेगा इस ओवम को, इस एग को, तो क्या होगा, ये ब्लड जो है बाहर आ जाएगा वैगिना से। और अगर नहीं, अगर यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है स्पर्म के द्वारा, then this blood will help in the growth of the baby. This blood will help in the growth of the baby. तो यहाँ पर दो चांसेज होते हैं, स्पर्म मिलना है या नहीं मिलना है। अगर स्पर्म मिलता है तो क्या हो जाएगा बच्चे, बेबी का ग्रोथ होगा, यहाँ पे इम्ब्रियो बन जाएगा, इम्ब्रियो बनेगा और इम्ब्रियो फिर बेबी पे कन्वर्ट होता है धीरे धीरे। 9 मंथ्स की वो प्रेगनेंसी स्टेज डेवलप हो जाती है। तो आपको ये चीज समझना है कि यहाँ पे ओवरी, ओविडक्ट और यूटरस कितना इंपॉर्टेंट है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो कहाँ रिलीज हुआ, ओविडक्ट में। और ओविडक्ट में अगर जो रिलीज होता है एग, तो ये एग अगर इसको स्पर्म्स नहीं मिलते हैं तो ये एग खत्म होकर, और ये जो ब्लड है, ब्लड जो ब्लड की लाइनिंग देख रहे हो यूटरस के वॉल्स में, तो ये ब्लड जो है बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट अकर्स ओनली वंस इन ए मंथ फॉर 4 to 5 days ये होता है in the female. In the female it happens for 4 to 5 days per month, every month. And if the egg is fertilized by a sperm, then there will be no menstruation for 9 months, and the baby will be growing with the help of this blood. तो यूट्रस की जो ब्लड की लाइनिंग है वो हेल्प करता है फिर बेबी के ग्रोथ के लिए। तो ये डिपेंड करता है, आगे आप बहुत सारी बातें पढ़ेंगे अगर आपको बायो में कैरियर होगा, और अगर आप नहीं तो फिर क्लास 10 तक तो आपको बायोलॉजी पढ़नी ही पढ़नी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल। इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, सिंगल मैच्योर एग। अब देखो स्पर्म और एग में क्या अंतर है, ह्यूमन बीइंग्स में एक ही एग
रिलीज हो रहा है। बट ह्यूमन मेल में क्या होता था, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स वेर प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरीवन। और यूट्रस क्या है, जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म द एन एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। अब स्पर्म्स देखो, कई स्पर्म्स आते हैं, बट नॉट ऑल स्पर्म्स गॉट गेट द चांस टू गो इनसाइड द ओवम। ओवम के पास जाने के लिए सभी स्पर्म्स को चांस नहीं मिलता है। कई स्पर्म्स आएंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, थाउजेंड ऑफ स्पर्म्स विल बी कमिंग, बट ओनली वन स्पर्म विल गेट ए चांस टू फ्यूज फॉर द फ्यूजन विद द ओवम। तो इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, और जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा, ये मेल है और ये फीमेल है, जैसे ही फ्यूजन होगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। ये ह्यूमन ओवम देख रहे हैं आप, ये ह्यूमन ओवम की डायग्राम है। इट इज ऑल्सो ए सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल है, सिंगल सेल है। नाउ यू कैन सी जाइगोट। अब जाइगोट में क्या हुआ, यहाँ पे गैमीट मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आ गए हैं। तो अब आपको समझना होगा एक बात, मेल गैमीट है स्पर्म प्लस एग, दोनों आ गए हैं। स्पर्म मेल गैमीट है और एग एक फीमेल गैमीट है। और दोनों में क्या है ना, हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल सिंगल एंड। जब दोनों का फ्यूजन होगा तो ये क्या बन जाएंगे, 2n। ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं स्पर्म और एग में, यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हुई है। मियोसिस डिवीजन अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि सेल में जो डिवीजन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जो जर्म सेल्स में होता है। किस सेल्स में होता है, जर्म सेल्स, यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो स्पर्म सेल है, एग सेल है, इसी को जर्म सेल्स कहते हैं। और इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पे जो है सेल्स की संख्या जो होती है सिर्फ n में हम लोग रखते हैं, और जब n+n तो क्या हो गया, 2n। 2n इज कॉल्ड द डिप्लॉयड स्टेज। 2n इज कॉल्ड डिप्लॉयड। तो जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है। जाइगोट कैसा स्टेज में है, डिप्लॉयड स्टेज में है। लेकिन स्पर्म, अगर मेल गैमेट की बात करें तो ये किस स्टेज में है, हैप्लॉयड है। अंडरस्टैंड इट। स्पर्म या एग जो भी होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, लेकिन दो हैप्लॉयड मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n, यानी डिप्लॉयड बनेगा। तो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विथ एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज, एक ही स्पर्म फ्यूज करेगा, ऑल द स्पर्म्स विल बी डिजेनरेटेड। सच फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस एंड इट results in the formation of zygote. So you can here see the process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. Sperm cell father से आता है, egg cell mother से मिलता है, और न्यू इंडिविजुअल में दोनों के कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं, मदर के भी और फादर के भी। तो आप देखोगे अपने ब्रदर और सिस्टर में भी कुछ सिमिलैरिटी आपसे होगी, और आप मदर से भी सिमिलर हो, फादर से भी कुछ सिमिलर हो, तो यू आर सिमिलर ऑल्सो, यू आर समथिंग डिसिमिलर ऑल्सो। तो ये डिपेंड करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, कैसे वेरिएशन होता है और कैसे हम कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। सो नाउ वी आर गोइंग अबाउट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमंस में, काउ में, डॉग्स में एंड हेन्स में। बट इन सम एनिमल्स like snakes, lizards, those who lay eggs, that is called, you will be surprised to know that fertilization takes place outside the body of the female. कभी कभी outside the body of the female भी होता है। तो कैसे होता है,
तो इस चीज को यहाँ पे आपके बुक में पढ़ा हुआ है, एग्स ऑफ फ्रॉग, यू कैन सी फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, और फ्रॉग की एग जो होती है वो सेल से कवर्ड नहीं होती है। लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। बहुत सारे एग्स हैं जो एक जेली से कवर्ड हैं और उसको प्रोटेक्शन मिलता है, और दे एग्स क्या होते हैं, धीरे धीरे एग्स टैडपॉल में डेवलप करेंगे और टैडपॉल से फिर एक फ्रॉग का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को जो बॉडी से बाहर होता है, ये वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर धीरे से वो ग्रोथ करके लैंड पे आ जाते हैं। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश एंड स्टारफिश ऑल्सो। फ्रॉक्स, रेनी सीजन में फ्रॉक्स और टोड्स जो होते हैं वो पॉन्ड की तरफ चले जाते हैं और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स की तरफ चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्यों पानी की तरफ वो क्यों जाते हैं? क्योंकि पानी में जब मेल और फीमेल एक साथ आते हैं वाटर बॉडी में, देन व्हाट हैपेंस, वहां पे एक जो होता है वो द फीमेल ले एग्स, वहां पर फीमेल क्या होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, और उस 100 ऑफ एग्स में जो एग्स होते हैं उनका फ्यूजन जब फीमेल से होता है, मेल से, मेल स्पर्म से होता है, मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम, जो एग्स होता है उस पर मेल फ्रॉग जो है अपना स्पर्म्स डाल देता है। फिर स्पर्म्स स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। आपने देखा ना स्पर्म में एक टेल होते हैं ताकि स्पर्म स्विम कर सकते हो। स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द एग्स, और स्पर्म्स एग्स के कांटेक्ट में आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी से बाहर होता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये हम लोग फिश और स्टार फिश में भी देख सकते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो आप समझ लो तीन बातें। एक, सबसे पहले गैमीट, गैमीट के बाद क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, बेबी। मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी दो गैमीट अगर है तो उसके फ्यूजन से जायगोट बनता है और जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। फिर एम्ब्रियो से बेबी कब बनता है, द सेल्स दैट बिगिन टू form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed an embryo. इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, जो यूटरस में इंस्टॉल फिक्स हो जाता है, और फिर यूट्रस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ दैट एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो अगेन कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। एम्ब्रियो कंटिन्यूली डेवलप करता रहता है और इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट लाइक हैंड्स, लेग्स। अब आप यहाँ देख रहे हो यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो में आप एक कंप्लीट, लगभग जो है एक कंप्लीट वेल डेवलप्ड एक बेबी देख रहे हैं, जिसमें हाथ पांव सब दिख रहा हो, कान दिख रहा है, नोज दिख रहा है, हेड, चेहरे, सारे सारे बॉडी पार्ट्स बन चुके हैं। तो ऐसे जब बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं जिस एम्ब्रियो के जिस स्टेज में, उस स्टेज को फोएटस कहा जाता है। द स्टेज, इस लाइन को आप याद रखिएगा। The stage of the embryo, the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a coitus. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified. And when the development of the fetus is complete, then the mother gives birth to the baby. तब बेबी का डेवलपमेंट होता है, और ये ड्यूरेशन फिक्स्ड होती है। प्रेगनेंसी की पीरियड जो होती है हर ऑर्गेनिज्म में फिक्स होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स होते हैं। बाकी और भी एनिमल्स की आपको ऑब्जर्व करनी है, सबकी क्या क्या है। गेस्टेशन पीरियड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड, एम्ब्रियो का डेवलप करना जितने समय में होता है वो पीरियड ही गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। एंड ह्यूमन बींग्स का, काउस का, दे ऑल्सो गिव बर्थ टू द बेबीज।
और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जायगोट रिपीटेडली डिवाइड कर रहा है एंड एम्ब्रियो बनता है, आपने देखा। लेकिन हेन्स में क्या होता है, एग में क्या होता है, दैट यू सी इन हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। आप देखो हेन्स का जो एग आप कभी कभी खाते हो, एग जो आप जानते हो कि एग क्या है, एग भी क्या है ना, जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। और जब ट्रेवल करता है तो वो प्रोटेक्टिव लेयर्स है उसके अनुसार। तो वही हार्ड सेल एग जो है अपने बेबी को बचाने के लिए वो कवरिंग में रखा हुआ है, उसकी जो हार्ड सेल होती है ऊपर, ये कवरिंग है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको वो कवर किया हुआ है। एंड आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen finally lays the egg. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. अगर आप हेन के एग को प्रॉपर ढंग से इसको डेवलप कराएंगे तो इसी से क्या बन जाएगा, चिक बन जाएगा। और ये कितना समय लेता है, तो 3 weeks लेता है। How much time the hen takes to develop into the egg develop hens egg develops to develop into a chick, कितना टाइम लिया, 3 weeks। 3 weeks chick develops into 3 weeks, याद रखेंगे ये पीरियड को। कई कई बार तुमने देखा होगा कि हेन जो है अंडे के ऊपर बैठी हुई है, क्यों भाई, वो एग को प्रोटेक्ट करती है, एग को अपनी वार्मथ, बॉडी की जो गर्मी होती है, बॉडी को जो हीट होती है वो अपने एग को डालती है। सो डू यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ चीक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जब चिक चिक डेवलप हो जाता है तो वो एग सेल टूट जाता है और चिक बाहर आ जाती है। तो ऐसे एनिमल्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देते हैं, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर एम्ब्रियो डेवलप किया है। अब ह्यूमन बॉडी में और हेंस के डेवलपमेंट में आपको अंतर क्या दिखा, वहां पे एग जो है बाहर है और एम्ब्रियो एग के फीमेल बॉडी के बाहर डेवलप किया। बट ह्यूमन बॉडी में, काउ में, ये सब क्या होता है ना कि अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप करना है, एम्ब्रियो को कंप्लीट बेबी के रूप में बाहर आना है। बट इन hen what happens, the baby comes out of the egg but it takes place outside the body of the female body. So embryo continue to grow within their egg coverings. After the embryo develop, the eggs hatch. So you must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. कितने tadpoles आपने कभी देखा है? अगर आपने देखा है तो यस लिखिए आप कमेंट में। I want to know whether you have seen it or not. What are viviparous and oviparous animal? Viviparous किसको कहते हैं? Oviparous animal जो एनिमल बेबी देते हैं, फुल ग्रोन बेबी को जन्म देते हैं, उसको विविपेरस एनिमल्स कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, काउ, ओविपेरस में आप ले सकते हैं जैसे स्नेक्स, दे ले डाउन एग्स, हेन्स, ऐसे एनिमल को डक, ये सब एग्स देते हैं। They lay eggs which they later develop into young ones. The animals which give birth to young ones is called viviparous and those which lay eggs are called oviparous. ये आपको याद करना है डिफिनीशन, ठीक है। इस डिफिनीशन को मैं थोड़ा सर्कल कर दूं आपके लिए ताकि आप इसको याद कर जाएंगे। The animals which give birth to young ones are called viviparous animals. And those animals which lay eggs are called oviparous animals. तो viviparous और oviparous समझ गए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ गए, स्पर्म सेल और एग सेल को आपने समझा। तो टुडे क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आप जान गए हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी टुडे। और आपने पढ़ा मदर गिव्स बर्थ टू यंग वंस, दे आर कॉल्ड विविपेरस। यंग वंस टू एडल्ट कैसे डेवलप होता है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, डायग्राम सीधा देख लो तो आपको समझ में आ जाएगी कि फ्रॉग जो है जब एग्स देते हैं तो ये एग्स डेवलप होता है टैडपॉल में। टैडपॉल फिर आगे बड़ा हो रहा है तो उसको लेट टैडपॉल, जब टैडपॉल थोड़ा और बड़ा हो गया, मैच्योर होने लगा, तो उसको लेट टैडपॉल कहते हैं। अब इसकी देखो टांगे निकल रही है।
और लेट टैडपोल जो है सो बन जाएंगे एडल्ट फ्रॉग। तो दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ऐसे चेंजेज को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हाइड्रा में देखो, हाइड्रा के रिप्रोडक्शन को बडिंग कहा जाता है। यू कैन सी बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग हाइड्रा के इस पार्ट्स को टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंटिकल्स। बडिंग जो होती है बड़ी सरफेस पे देखो एक टेंटिकल्स निकला हुआ है इस तरह से, यहाँ से ये जो बडिंग है, और ये बडिंग ही धीरे धीरे एक हाइड्रा का फॉर्म ले रहा है, और एक नया हाइड्रा, एक पेरेंट हाइड्रा से एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दैट इज कॉल्ड बडिंग इन हाइड्रा। बट अमीबा के केस में क्या होता है बच्चा? अमीबा के केस में बाइनरी फिशन होते हैं। क्या होते हैं? अमीबा की रिप्रोडक्शन को हम लोग, दीज आर कॉल्ड asexual reproduction and this is called binary fission। अमीबा के रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? क्योंकि अमीबा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है। देखो न्यूक्लियस के डिवाइड होने से दो न्यूक्लियाई बन रहे हैं, और दोनों न्यूक्लियाई जब सेपरेट होंगे तो दोनों अलग अलग सेल बन जाएंगे। इस तरह से दो सेल बन गए डॉटर अमीबा। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन हो गया, इसलिए इसको बाइनरी फिशन भी कहते हैं। टेक्स प्लेस इन अमीबा। देन स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोन कैसे बनता है? डीएनए की डीएनए की सीक्वेंसिंग को जान के तब क्लोन बनाया जाता है। स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। इट इज एग्जैक्ट कॉपी बनाना है किसी सेल का, किसी लिविंग पार्ट का, या किसी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का, तो इसी को क्लोन कहते हैं। मीन्स उसकी एग्जैक्ट कॉपी उतारनी है, हूबहू एकदम उतार देना है। तो क्लोनिंग ऑफ एनिमल वाज सक्सेसफुल्ली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आप याद रखेंगे, किनका नाम याद रखेंगे? यान विल्मट। IAN, यान विल्मट and his colleagues at Roslin Institute in Edinburgh, स्कॉटलैंड। और इन्होंने जो फर्स्ट क्लोन बनाया था उसका नाम डॉली रखा था, याद रखिएगा। डॉली वॉज बोर्न ऑन 5th July 1996 and it was the first mammal to be cloned. So you will read about Dolly also, but Dolly also died on 14th February 2003 due to certain lung disease. And this was the story of the cloning. These are the different keywords that you should write the definition. What is asexual reproduction? What is binary fission? What is budding? I hope all of you have understood the topics very well. If you don't understand, you may write in the comment section and I will help you to make it to clarify the things. Okay? Thank you. Do the exercises and write in the notebook. I will help you to check your notes also in Google Classrooms. Okay, thank you. And if you like it, you must share and you must subscribe the video. Subscribe my channel if you like my video very much, and I am trying to make the things very easy in biology. Okay, bye. See you in next video. Thanks for watching. Thanks for